Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 for Pakistan Studies for grade 9. Open your Pakistan Studies book. Today our topic is Objective Resolution 1949. Today our topic is Objective Resolution. Now student, open page number 70 of your Pakistan Studies book. Today our topic is Objective Resolution. This resolution was passed by then Prime Minister Liaquat Ali Khan from Constituent Assembly on 12 March 1949. ये रिजोल्यूशन लियाकत अली खान ने मूव किया था कंस्टिट्यूएंट असम्बली में और फिर इसी कंस्टिट्यूएंट असम्बली ने उसे 12 मार्च 1949 को 12 मार्च 1949 को उसी असम्बली से पास किया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज वजूद में आया था। पाकिस्तान जब बन गया तो मुख्तलिफ किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ा। इसी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जिन जिन मसाइल का इनिशियल प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ा, और वो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम हो, डिफेंस प्रॉब्लम हो, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो, मुख्तलिफ किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ा। उसी ही मसाइल में से एक प्रॉब्लम उसी कंस्टिट्यूशन बनाने का था, आईन बनाने का था। मुल्क में आईन नहीं था। नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री फॉर 9 years। 9 साल तक मुल्क बगैर आईन के चल रहा था, एक बड़ा अलमिया था। तो उसी ही के सिलसिले में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक पहली एफर्ट से पहली एक कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट है पाकिस्तान में आईन बनाने की तरफ। That we can say that the objective resolution is the first significant steps toward the framing of constitution and was taken by the Constituent Assembly in March 1949 when it passed a resolution on the aim and object of the constitution and popularly known as objective resolution. Got it? It laid the foundation of the constitution and indicated the broad outline of its structure. It was described as the most important occasion in the life of Pakistan, next in importance only the achievement of independence. This resolution was moved by Liaquat Ali Khan. And the text was passed by Constituent Assembly on 12 March 1949. उसी ने ये पास किया इस रिजोल्यूशन को। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिजोल्यूशन की, क्या बात थी, इसे जो आईन साज असम्बली थी, हमारी फर्स्ट कंस्टिट्यूशन असम्बली थी, उसी ने पास किया था। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम सीरियल नंबर बताएंगे। Now this resolution was passed by Prime Minister Liaquat Ali Khan and then passed by Constituent Assembly on 12 March 1949. Objective resolution has got a fundamental status in the constitution making history of Pakistan. इसी objective resolution को fundamental status, बुनियादी हैसियत हासिल हो गई constitution making history of Pakistan में। क्यों? Why? Because all the successive constitution of Pakistan was based on this objective resolution. ये उसी की बेस पर रही, उसी का हिस्सा रहा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो तमाम आने वाले आईन थे। और आजकल जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कंस्टिट्यूशन 1973 कंस्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन was a fundamental part of 1973 constitution. Objective resolution is the fundamental part of the present constitution of Pakistan. तो इसी वजह से इनको फंडामेंटल स्टेटस हासिल है, बुनियादी हैसियत हासिल है। उसी ही की बुनियाद पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है।
Islam has been declared as ideological base for the constitution of Pakistan. इस्लाम को डिक्लेयर कर दिया आइडियोलॉजिकल बेस, आइडियोलॉजिकल जो नजरियाती बुनियाद हैं, आइडियोलॉजिकल बेस हैं, उसी को इस्लाम को करार दिया गया पाकिस्तान की आईन। क्यों इनको आइडियोलॉजिकल बेस करार दिया गया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट when the Muslims of the subcontinent were struggling for the freedom, they had demanded such a state where they could lead their lives according because of the facts that when the Muslims of the subcontinent were struggling for the freedom, they had demanded such a state where they could lead their lives according to the golden principle of Islam. इसलिए इस्लाम को आइडियोलॉजिकल बेस करार दिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री में चले जाएं, पाकिस्तान बनाना, जो पाकिस्तान बना था वो किसके नाम पर बना था? इस्लाम के नाम पर बना था। बरसगीर पाको हिंद की मुसलमानों की जो स्ट्रगलिंग थी, जो जदोजहद आज़ादी थी, वो किस चीज के लिए थी? कि एक ऐसी रियासत का क़याम कि जहां पर लोग अपनी जिंदगी इस्लामी सुनहरी उसूलों के मुताबिक बसर करें, जो कुरान और सुन्ना है उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, जहां पर इसे कोई डिफिकल्टी का सामना ना हो, जहां पर वो फ्री हो कि वो अपनी इबादतगाह में जाए, अपनी मस्जिदों में जाए, अपनी जिंदगी अपनी कुरान और सुन्ना के मुताबिक गुजारे। ऐसी स्टेट की डिमांड थी। तो दैट्स व्हाई इस्लाम डिक्लेयर एज आइडियोलॉजिकल बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, where they could safeguard the cultural heritage accurately. कल्चर जो सकाफती विरसा है उसी की वो हिफाजत अच्छी तरीके से वो हिफाजत करी। Therefore, after the creation of Pakistan, it was desirable that we should declare Islam as the basis of our state policies. तो जो इस्लाम के नाम पर ये मुल्क जो हमारे वजूद में आया है, the name of Islam on the world map, तो यही डिजायरेबल थी, यही तकाजा था कि जब ये मुल्क बनी तो इसकी जो स्टेट पॉलिसी हो, इस्लाम उसमें क्या हो? बेसिस हो, इस्लाम उसी की पॉलिसी की बुनियाद रहे। तो यही तकाजा था। तो दैट्स व्हाई इस्लाम को क्या करार दिया गया? डिक्लेयर एज आइडियोलॉजिकल बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बातें थी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में? हम one by one. Again, I will summarize the first paragraph. Passed from the Constituent Assembly. Lahore Objective Resolution was passed from Constituent Assembly on 12 March 1949. Moved by Liaquat Ali Khan and passed by Constituent Assembly on 12 March 1949. Presenting the demand of the subcontinent who struggling for the freedom, and Islam should be the basis of our policy. उसने मुसलमानों की जो बरसगीर पाको हिंद की मुसलमानों की जो डिमांड थी कि एक ऐसी रियासत का मुतालबा जहाँ पर वो अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक बसर करे, तो उसी वजह से जो स्ट्रगलिंग की थी फ्रीडम मूवमेंट के लिए, तो इसी वजह से इस्लाम को जिस चीज़ की स्ट्रगलिंग की थी, तो इसी वजह से इस्लाम को main points of objective resolution. First of all, objective resolution states that sovereignty all over universe belongs to Almighty Allah. The powers which Almighty Allah has bestowed on the people of Pakistan are being exercised within the limits prescribed by them as a sacred trust. Objective resolution की जो first point है that sovereignty all over universe belong to Almighty Allah. जो मालिक होगा इस सारी कायनात का वो कौन होगा? ऑलमाइटी अल्लाह। सोवरेनिटी सुप्रीमेसी किसकी होगी? हाकिमियत आला कौन होगा? अल्लाह ताला होगा।
ऊपर तो अल्लाह ताला की सुप्रीमेसी है, ये तो बतौर हर मुसलमान जानता है। जो नीचे फिर इनके खलीफा जो इंसान है वही इन पावर को चलाएगा। तो जो पावर जो अल्लाह ताला ने द पावर विच ऑलमाइटी अल्लाह हैज bestowed on people of पाकिस्तान, जो अल्लाह ताला ने दी है जो पावर पाकिस्तानी अवाम, इनको क्या करेगा, इनको एक खास मुकर्ररा करदा लिमिट में, जो अल्लाह ने इनकी लिमिट रखी है, मुकर्रर करदा हुदूद हैं, उसी में इनको बतौर एक सैक्रेड ट्रस्ट, बतौर एक अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यानी अवाम जो होगी, जो पावर इस्तेमाल करेगी ना पाकिस्तान की अवाम, वो इसको बतौर एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला की मुकर्ररा हुदूद में रहकर। इसमें वो हयानत नहीं करेगा, नाजायज़ का नाजायज़ तरीके से उस पावर का इस्तेमाल वो नहीं करेगा, बतौर एक सैक्रेड ट्रस्ट के तौर पर वो इनको इस्तेमाल करेगा। Now, moving towards second point, power of the state shall be exercised through elected representative of the people. अब जो पाकिस्तान की जो स्टेट की जो पावर है, रियासत की जो पावर है, वो कौन इस्तेमाल करेगा? रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करेगी। अभी ये जो पावर है, जो एक सैक्रेड ट्रस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो यही पावर स्टेट किसको ग्रांटेड करेगी? ये पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो हम वोट के जरिए इनको लाते, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे, वो वही लोग क्या करेंगे? इसी पावर को इस्तेमाल करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, tolerance and social justice will be observed. इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम आज़ादी, डेमोक्रेसी जमहूरियत, फ्रीडम आज़ादी, टॉलरेंस बर्दाश्त और सोशल जस्टिस माशरती इंसाफ। हम कहते हैं यहाँ पर जमहूरियत, क्या? डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जमहूरियत क्या है? जहाँ पर लोग क्या हो, अपने वोट के जरिए, थ्रू वोट इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर वोट के जरिए अवाम अपनी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। नाउ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ओनली कैपेबल, ट्रूथफुल, pious, faithful and all people have the right of public representation. इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में जो राइट होगा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की, जो लोगों की नुमाइंदगी करेगा, तो वो क्या होगा? वो कैपेबल होगा, ट्रूथफुल होगा, पायस होगा, पाकदामन होगा और फेथफुल होगा और ऑलमाइटी अल्लाह फियरिंग पीपल, क्या? जो अल्लाह से डरने वाले हो, वही कौन होंगे? लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो वही इस्लामिक प्रिंसिपल और डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्रीडम को, आज़ादी को, वहां पर हर किस्म की इनको आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी होगी, लेकिन एक जो लिमिट होगी उसी ही में रहकर इनको फ्रीडम हासिल होगा। टॉलरेंस, बर्दाश्त, सोशल जस्टिस, उनको क्या? माशरती इंसाफ। According to the teaching of Islam, no discrimination can be made among human beings in the society on the basis of caste, creed, color, race, material wealth. अगर हम कहते हैं ना माशरती इंसाफ की बात, तो इस्लाम में जो होगी सब बराबर है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ह्यूमन में, किस जो उसको कास्ट के बेस पर हो, उसकी ज़ात पर हो, कलर पर हो, या
उनकी मटेरियल वेल्थ पर हो, बल्कि तमाम इक्वल हैं। जो हमारे माशरे में जो क्लासेस बनी हुई हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये नहीं होनी चाहिए। ये सब इक्वल हैं, तमाम लोग बराबर हैं। गरीब और अमीर सब बराबर हैं। गरीब और अमीर के लिए कानून नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ Quaid said that he insisted on the establishment of such type of society which was based on equality and social justice. कादियाज़म की जो सुनहरी उसूल है, उसी में भी वो एक ऐसी माशरे की क़याम पर जोर देता है जो कि इक्वलिटी और सोशल जस्टिस पर मबनी है। तभी वही माशरा चलकर कामयाब होगा जो जिसमें इक्वलिटी हो और सोशल जस्टिस हो। अदरवाइज वही माशरा कामयाब फिर नहीं होगा, वही माशरा आगे नहीं चल सकता। That's why these points are included in objective resolution. Number 4. The Muslim of Pakistan will enable to order their lives according to the teaching of Islam. पाकिस्तान में मुसलमानों की ज़िंदगी इस कदर बनाई जाएगी, इस काबिल बनाई जाएगी कि वो क्या करे, अपनी ज़िंदगी को इनेबल टू ऑर्डर, कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सुनहरी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। Accord lives order to their lives according to the teaching of Islam mean कुरान एंड सुन्ना, जहाँ पर वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, जहाँ पर इनको हर चीज़ की आज़ादी हो, इबादत की आज़ादी हो। तो हम ऐसी ही इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसी ही की बहस पर पाकिस्तान वजूद में भी आया था इस्लाम के नाम पर। उसी ही डिमांड कैसी डिमांड थी कि बरसगीर पाक व हिंद की मुसलमानों की वो डिमांड कि हम एक ऐसी रियासत की डिमांड करते हैं जहां पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक बसर करें। इसलिए हम ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि वो अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। नंबर 5. Minority will given due freedom to lead their lives according to their religious and culture. अक़लियत जो कम नंबर अदर दिन इस्लाम, हमारी जो यहाँ पर मेजोरिटी है वो मुस्लिम है, तो जो गैर मज़हब वाले हैं, दूसरे मज़हब वाले, वो यहाँ पर माइनॉरिटी में जो कम तादाद में है। अक्सरियत मुसलमानों की है और अक़लियत गैर मुस्लिम्स की है यहाँ पर। तो इनकी भी हुकूक की गारंटी होगी, इनको फ्रीडम होगी कि वो भी अपने रिलीजन के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स विल बी गारंटेड, बुनियादी हुकूक होंगे उसी की जमानत होगी, गारंटी होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी सिक्योर, जुडिशरी आज़ाद होगी, इंडिपेंडेंस होगी, अदलिया अदालत। Number 8. Federal system of the government shall be established in the country in which province shall be given autonomy with such limitations as may be described. कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? फेडरल सिस्टम होगा। यहाँ पर मुल्क में वफाकी निज़ामी हुकूमत कायम किया जाएगा जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होगी। यानी हम कहते हैं यहाँ पर फेडरल सिस्टम होगा और उसी में जो आईनी हदूद में रहकर सूबों को क्या खुद मुख्तारी दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब हम फेडरल सिस्टम की डिफिनेशन पर चलते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फेडरल सिस्टम। फेडरल, व्हाट इज मीन बाय फेडरल? Division of power between the center and province. Division of power between the center and provinces. ये तकसीम है पावर की किसके दरमियान? सेंटर के दरमियान
और सूबों के दरमियान, जो विभाग हैं विभाग और सूबों के दरमियान पावर का तकसीम, रिसोर्स पावर और रिसोर्सेज की डिवीजन है ये। लेकिन हम कहते हैं डिवीजन तो है इनकी, लेकिन यहाँ पर ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस विल बी ग्रांटेड। किसको खुद मुख्तारी होगी, ऑटोनॉमी किसको दी जाएगी, गारंटी होगी, वो सूबों को। बट सेंटर हैव सम कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, but center have some control over the province. That is federal form of government. Now again, main point I will summarize. Main points of objective resolution: that sovereignty all over universe belong to Allah. sovereignty किसकी होगी ऊपर, अल्लाह की होगी। नीचे जो इख्तियारात जो पावर होगी वो कौन यूज करेगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो स्टेट की जो पावर हैं वो जमीन पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान में। Islamic principle of democracy, tolerance, freedom and social justice will be observed. Lives according to the teaching of Islam. मुसलमानों की ज़िंदगी इस काबिल बनाए कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक बसर करें। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी होंगी, फंडामेंटल राइट्स विल बी गारंटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी आज़ाद होगी, अभी आज़ाद होगी। और कौन सी सिस्टम होगा, फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर between the center and the provinces, but autonomy will be granted to province with prescribed limited, आईनी हुदूद में रहकर उसको खुद मुख्तारी दी जाएगी। Importance of objective resolution. After the creation of Pakistan, the approval of objective resolution has stated a significant step in the history of the country. Its importance is due to the fact that it remained the basis of all successive constitutions framed later on. The objective resolution remained a part of all constitutions as preamble. This was made the basic part of Pakistan Constitution of 1973 by amendment in 1985. इसकी अप्रूवल के बाद जब ये मंजूर हो गई, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दिस objective resolution got significant status in the history of the constitution making. Its importance due to the fact that it remained the basis of all successive constitution. इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है कि जो बाद में आने वाले आईन थे उसी की ये बेसिस रही, बुनियाद रही। और ये तो सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो एज ए प्रियम्बल के तौर पर ये थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिमेन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रियम्बल, ये इब्तिदाई में शामिल किया गया था, लेकिन उसे बाकायदा तौर पर बाद में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट मीन तरामीम के ज़रिए 1985 में उसे उसका बेसिक पार्ट, बुनियादी हिस्सा बनाया गया 1973 का। नाउ राइट डाउन होमवर्क, याद करें, लिख लें। डेट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन and its importance. Short question number 5. That's the end of this topic. Best of luck.